Hello, Assalamu alaikum everyone. Good evening. This is me, Sindhu Sanwar, your host for the day, and I hope you guys are doing good and everyone's fine at their places. The rain was crazy and everything was out of reach. We all tried our level best to give you reviews and to help you guys. We had our Muharram shows as well. I hope you guys enjoyed that too. So we're back with the swing, and I hope everything gets back to normal as soon as possible. We talk about reimaging education in my show, and we try to discuss the different aspects and how education is inculcated now and what adaptabilities we're taking in education. I have an excellent guest with me today. Her name is Mavish Sayyed. Mavish. Mavish is actually an active member of the Chamber of Commerce. She is the CEO and co-founder of the Unicorn Consultants Private Limited. She is the co-founder of Emerge. She's a director at Unicorn Media and president founder at Panache Women. So, Mavish, how are you? I'm good. Thank you so much for inviting me on this brilliant platform. I'm so glad to be part of this show. And I'm doing good. Right after rain, what you can expect from a typical Karachiite. We are resilient. चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में, the next day हम कपड़े शपड़े झाड़ के उठते हैं. We stand straight and we are good to go. So I'm as good as any other Karachiite today. I totally agree with that. So, Mavish, you're an excellent, trainer. You've had a number of experiences with you. And I totally agree that as a Karachiite, we just have this resilience in us. And I can see the resilience in you as a person, as an individual as well. So talk about your career and your whole journey as now you are, a co-founder of one of the great pages and you have a whole consultancy in front of you and you're heading it. So how has this all come up? Acha, talking about my journey, I grew up in a kind of a high household जहाँ पे हमें ये नहीं किसी ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर ही बनना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. We had this freedom to choose our lives या choose our career. उसमें कुछ थोड़ी बहुत थे पाबंदियाँ थी, जैसे when I was a very little kid I wanted to be an air hostess. तो फिर अच्छा हुआ कि my parents said no, ये नहीं करोगी तुम, and then I had to look for other opportunities or other career paths. So I started working very early. Right after my high school, I got an opportunity and I took that. सबसे पहले the first job I took up was a teaching job, which I did for a year. उसके बाद then I had to continue with my education. I had to pursue my degree, and उस degree के लिए I did my degree in computer sciences. During that degree, एक मैंने venture start किया. मतलब always had the entrepreneurial कीड़ा in me. I wanted to do something. हमेशा कुछ ना कुछ मुझे नया करना होता था. तो मैंने I gathered a few group of friends, like-minded friends, and we started एक अपने छोटा सा एक छोटी सी company register की software house समझे, which was a failed project. We invested all our time, money, everything, लेकिन वो नहीं चल सका. उसके बाद and I learned a lot from that failed venture. And then while I was doing my MBA, so उस वक्त I joined. Luckily, I had a very good opportunity, which was in a multinational. It was an American logistics company which had so many offices around the world, and I joined as first I joined as sales administrator there, and then I was promoted as assistant regional sales and marketing head. And that was the place where I learned a lot. वो तमाम चीज़ें मैंने सीखी जो अगर मैं पहले अपना वेंचर खुद लॉन्च करने से पहले अगर नौकरी कर लेती तो मैं वो सारी गलतियां ना करती जो मैंने अपने बिजनेस को बस अचानक से स्टार्ट करने से किया. So that training which I got while working, that helped me कि मैं आगे कुछ बेहतर काम कर सकूं. उसके अलावा I taught again एक A-level school में. And there are a lot of things that I did, that I have done in my life. और ये सारी चीज़ों ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो सारे रगड़े लगते रहे या काम करती रही, तो that added a lot in my experience, in my personality, in my exposure. और उसके बाद कोई तकरीबन 2013 में me along with a couple of more family members, we launched this business consultancy firm that is Unicorn Consultants. And then उसी के कुछ अरसे के बाद I launched this, I formed this women empowerment platform that is Panache Women Global. It's a global network. It's a women empowerment global network.
और कुछ अर्से पहले we have recently launched another platform which is for both the genders, and that is Emerge. Emerge जो है वो एक platform है for influencer, thinkers and community leaders and anyone who wants to contribute something positive in the society. Yeah, that's a huge, sum up if I talk about your whole journey that, you started off with a teacher and you are now, a co-founder of Emerge. Manish, taking and talking about your failures and how you have actually emerged from them. And you say that, and I was even talking to you before, you told me this, when you don't put yourself out in their field, you don't realize what mistakes you're going to make. You need to be that resilient, that active to just go in the field and start something. So how much do you think is that effectful, being in the field and just taking a degree without that, particular resilience of going forward? देखो, being in the field is critical for your success. आप कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, कितनी भी डिग्री ले लें, सब बातें किताबी होती हैं. जब तक आप, अब जैसे अगर फर्ज करो कि एक प्लम्बर है और उसको वो अपने बेटे को बिठा के जी 20 साल सिर्फ बताए कि नल ऐसे ठीक होता है और हम ऐसे स्क्रू लगाते हैं, जब तक वो खुद उस नल को ठीक नहीं करेगा या वो लीकेज को खुद बंद नहीं करेगा, वो कैसे सीखेगा? किताबी बातें, मैं ये नहीं कहती कि डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट, डिग्री इज इम्पॉर्टेंट टू एन एक्सटेंट, बट एक्सपीरियंस, आप जितना गलतियां करके सीखते हो. हमारे एक आम ख्याल है कि जब हम एक दफ़ा फेल हो जाते हैं, हम उसके बाद वो रास्ता ही छोड़ देते हैं. ऑल्दो इन माई केस, एंड अगर आप बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू करेंगे, ऑल द सक्सेसफुल पीपल दैट वी सी टुडे, तो उनके पास आज अगर आपको सक्सेस नज़र आ रही है तो पीछे एक सीरीज ऑफ फेलियर्स है, सीरीज ऑफ डिप्रेस्ड रातें हैं, दिन है, ब्रोक हैं आप, कभी आप बैंकरप्टेड हैं बिकॉज आपने कभी कभी अपना पूरा पैसा लगाते हैं. लेकिन होता क्या है, जो समझदार इंसान होता है, जो एक कामयाब इंसान होता है और नाकाम इंसान में फ़र्क ये होता है कि कामयाब इंसान की नज़र हमेशा अपने गोल पे होती है. उसको पता होता है कि ये गलत हो गया, चलो ठीक है, आई ट्राई समथिंग एल्स, या ये वाला भी हर बार फेल हो गया तो आई डू समथिंग एल्स इन ऑर्डर टू अचीव माई गोल, अचीव. और वो जो उसने ख्वाब देखा होता है बड़ा. नाकाम आदमी की क्या होती है कि उसने जैसे ही वो फेल हुआ, अरे यार बिजनेस तो मेरे लिए है ही नहीं, या ये जॉब तो मेरे लिए है ही नहीं, लोग तो सारे मेरे खिलाफ हैं, कंप्लेनिंग, वाइनिंग एंड देन ब्लेमिंग योर फेट, ब्लेमिंग योर लक. तो अगर आप अपनी नाकामियों में से देखें, देखो आप कितना भी नाकाम हो जाए बुरी तरह, आपको कुछ हाथ नहीं आया, आपको एक चीज हाथ लगती है, वो क्या होती है? लेसन. आप उससे एक्सपीरियंस निकालते हैं. आपने उस ड्यूरिंग दैट जर्नी, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, आपके साथ 3 बातें हुई होती हैं. एक, आपने अपनी कोताही सीखी होती है, अपनी शॉर्टकमिंग को देखा होता है, अगर आप अकल रखते हैं तो. अदरवाइज तो आप ब्लेम करेंगे सबको. लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने अंदर झांकते हैं कि यार यहाँ मैं गलत था, या ये मेरा फेलियर है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओन योर फेलियर्स ना. मैं आगे भी ये बात करूंगी, जो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस में, उसमें ये होता है कि आप ओन तो करें कि हाँ मैं फेल हो गया, उसका ये रीजन था. सेकंड, यू गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल, गुड और बैड. आप पहचान जाते हैं लोगों को कि यार ये इसके साथ आइंदा काम करना है, उसके साथ काम नहीं करना है. तो यू फाइंड सम गुड पीपल ड्यूरिंग दैट जर्नी एंड सम बैड पीपल. और तीसरी चीज़ है एक्सपीरियंस, जिसका कोई मोल नहीं है. एक्सपीरियंस के आगे आप मतलब जो एक्सपीरियंस आपको उन सालों में होता है ना, वो आपको घर बैठ के किताब खोल के डिग्री लेके नहीं आता. That's so true. If I, put forward certain people and what I have gone through, when my friends were actually, and all my friends are now, about to graduate and some are in their masters. And I see this in the student body, very, very common that I just need to get in this university. I'll get the degree from this particular, university and I'll be good for the job. And to be very honest, Manish, looking at the job market in Pakistan, it is true to an extent as well that they do get an opportunity. The opportunities are very big. उनके लिए खुल जाती हैं. और जो बच्चे जो नॉर्मल जगह से पढ़े हुए होते हैं उनके लिए थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग यही बोलते हैं कि उनका एक्सपोजर कम है, या उनको इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं करी हुई चीजें, या उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अच्छी नहीं है. आई गेट दैट पॉइंट, बट टेकिंग योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस फॉरवर्ड, कि वाकई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होता है वो ही आगे चलते हैं और उन्हीं के साथ आप सीखते हो. और यू नीड टू हैव दिस ग्रिट इन यू कि भाई मुझे सीखना है और मुझे ये करना है. दिस गोल ओरिएंटेड सोचना, ये जो बहुत कम मैंने देखी है. बच्चों को अक्सर पता ही नहीं होता व्हाट दे वांट टू डू इन द फ्यूचर. यूजुअली आप जब एक कॉलेज गोइंग बच्चे से पूछो एंड दे आर लाइक नो आई डोंट नो, मे बी आई विल डू दिस, मे बी आई विल डू दैट. बहुत से तो मे बी भी नहीं बोलते, दे आर लाइक देखा जाएगा. एग्जैक्टली, देखा जाएगा.
हम जो जैसे आज जो हमारा टॉपिक है कि आपको कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रोफेशनल या करियर जो आपकी सक्सेस को डिटरमिन करते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो यही है जो तुमने भी बात की ना कि देखा जाएगा। भाई देखा क्या जाएगा? जब तक मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जब तुम गाड़ी स्टार्ट करते हो तो क्या तुम्हें पता होता है तुम्हें कहाँ जाना है? फॉर इंस्टेंस अगर मुझे डॉल्फिन मॉल जाना है तो मैं गाड़ी मुझे पता है मैंने किस डायरेक्शन में डाली है। मैं गाड़ी में बैठ के तो नहीं कहती कि देखा जाएगा, चलो निकलते हैं भाई। वो कभी कभार की सैर होती है कि लेट्स गो आउट, लेट्स फाइंड आउट कहाँ पे खाना खाना है। और वो भी अगर देखो कि जिस दिन हम लोग प्लान किए बगैर निकल जाए कि कहाँ खाना खाएं, वो डिसीजन ही नहीं हो पा रहा होता और भूख लग रही होती है। It's the power of decision making at the right time which saves your time and which determines your success to an extent. अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। For Emerge, we are designing a program for youth जो कि बहुत ज़बरदस्त एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है एंड there are lot of things which are part of it. तो उसके लिए for that I interviewed lot of people जो कि recruiters हैं या HR में काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। उनका काम ही यही है कि वो प्रोफाइल्स देखते हैं, सीवी चेक करते हैं और वो फिर शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स। आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम कि कौन सी चीज़ें हैं जो आसान हो जाए ना कि जब हमारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि HR वाला देखेगा क्या, मतलब मुझे अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करना है। और कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे जो तकरीबन हर HR का जो बंदा था बैठा हुआ उसने मुझे सर्टेन पॉइंट्स बताए। आई लिस्टेड दोज पॉइंट्स डाउन एंड आई शेयर दोज विद यू। एक तो सबसे पहली चीज़, व्हेन समबडी वॉक्स इनटू द इंटरव्यू रूम, पहली चीज़ जो नोटिस करता है कोई भी HR का बंदा वो होती है आपकी अपीयरेंस, द वे यू हैव ड्रेस्ड अप, द वे the kind of body language you have, the kind of energy you're giving off. बिजनेस बिल्कुल उसी तरह से है या नौकरी या बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह आप किसी से दोस्ती करते हैं। हमें जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो हम सबसे पहले उनकी अपीयरेंस चेक करते हैं। हम कोई बिल्कुल अजीबोगरीब देखने वाले लोगों को तो शायद अगर कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो कि बिल्कुल हमारी मिजाज का नहीं है, हम उससे दोस्ती भी नहीं करेंगे। पीपल लाइक टू कनेक्ट, हैंग आउट विद प्लेजेंट पीपल। Same goes for organizations, same goes for businesses. आपने the way you have dressed up, that speaks volume about you. ना overdressed हो ना underdressed हो, you should be dressed perfectly, बिल्कुल जो जॉब को सूट करे। एक बड़ा अमेजिंग मैंने कहीं पढ़ा था, it was written dress the way you want to be addressed. जिस तरह आप चाहते हैं लोग आपसे बात करें, आप उसी तरह से ड्रेस अप हो। तो the first thing is appearance. उसके बाद जब आप वहाँ जाके बैठते हैं, लाइकेबिलिटी, मतलब द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर सक्सेस। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, जैसे सेकंड क्या चीज़ है, एज सून एज यू सेट, आप दूसरा काम क्या करेंगे, आप बात करेंगे, आप मुंह खोलेंगे। कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं क्योंकि वो अपना एक सर्टेन टाइप का सर्कल रखते हैं। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, लेट मी पुट द चार्जर ऑन माय बैटरी ऑन द लैपटॉप, जस्ट वेट अ बिट। Okay, it's okay. You can do that. No. It's okay. I understand. Some things are just there. Manish, taking your point forward, the recruiters' point of view and how these, interviews play a very important role. I totally agree. Even when I was, talking to my headmistress once, she told me that so just the moment you came in my office, I knew what role I wanted you to do. I knew what you have to be doing for me. अभी भी when I talk to her, she's like, no, Sundus, I know तुम्हारे लिए मेरे पास क्या काम है और मैं तुम्हें क्या क्या दूंगी, because they have that vision. Yes, because they see you and they think अच्छा मुझे ये बंदा इधर चाहिए। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मुझे नहीं मिलती अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। There are so many women who complain कि we don't get opportunities. Yesterday I was talking to you कि मुझे अक्सर औरतें कहती हैं कि we don't get good opportunities. And as far as I'm concerned, I never gotten any bad opportunity. बल्कि मुझे कभी कभी लगता था कि मेरे साथ जो आदमी बैठे हैं उन बेचारों को opportunities नहीं मिल रही हैं। अच्छा जी, एक चीज़ हो गई आपकी appearance, आपका the way you have dressed up. सेकेंड होगा योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। प्लीज़ अपनी उर्दू में बात कीजिए तो सुथरे अंदाज में कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए तो सही कीजिए। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। इट्स ऑल मतलब आपके अपना वो है ना फोकस कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ।
थर्ड थिंग इज, अब आपने अपना सीवी सामने रखा हुआ है, द थर्ड थिंग इज योर डिग्री, योर एजुकेशन. अगर आपने एलीट जो हमारी रूलिंग यूनिवर्सिटीज़ में कहूँगी, अगर उनसे आपने वहाँ के ग्रेजुएट नहीं है तो चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाते हैं. लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपने अलॉन्ग विद योर डिग्री फ्रॉम एन XYZ यूनिवर्सिटी, अगर आप साथ में कुछ सर्टिफिकेट्स कर लीजिए, आप जहाँ जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उनको बताइए कि आई एम द बेस्ट suited candidate for this job, और उसके साथ साथ आपके पास कुछ स्किल सेट हो, तो why would they turn you down? लोगों को काम चाहिए, आपकी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपके किस यूनिवर्सिटी से आए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा. पीपल वांट वर्क आउट ऑफ यू, कि कौन शख्स है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सकता है. तो ट्राई टू गेट योरसेल्फ सर्टिफाइड फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशंस. IBA है, वो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज. PIM है, दे ऑफर लॉट ऑफ कोर्सेज. अगर आपको लगता है कि मैं किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, so many universities that are offering courses. तो तीसरी चीज, आपकी डिग्री कर रहे थे तो तुम छुट्टियों में क्या कर रहे थे? Why didn't you और उनसे सर्टिफिकेट ले लो कि मैंने आपकी इस कैपेसिटी में, इस रोल में ये काम किया था. वाली बात है ना, जब आपको अपना गोल पता होगा लाइफ का, जब आपको पता होगा मैंने आगे कहाँ जाना, उसके लिए पहले से होमवर्क करके रखेंगे. आप किसी लें होगा क्या ड्यूरिंग दैट टाइम, जब आप पूरा डिग्री का कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप्स, आपका बहुत सारे IT इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, तो फ्री लोगों को प्रोजेक्ट्स बना के देना शुरू करें. get certifications or projects बना दें. Then I will be able to my entire portfolio to my client, कि उसको ये नहीं होगा कि वो she did not wait कि वो डिग्री करेगी और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर देगी. She worked for 4 years and the first job she got, it was not an internship, it was a management trainee in a leading advertising agency. तो ये बच्चों के अंदर अगर वो पहले से उनको पता हो ना लाइफ में करना क्या है. अच्छा, then what HR people look into an ideal candidate? Passion. yes. उनके अंदर कितना पैशन है उनकी अपने काम को लेके, वो क्या रिलायबल है भी या नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या वो लेट आवर्स में रुकने को तैयार हैं या नहीं, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू वेलकम प्रॉब्लम्स. उनको अगर आपके साथ काम करना है तो उनको ये नहीं सुनना कि मैं 5 बजे घर चला जाऊंगा या मैं 8 बजे घर चला जाऊंगा या आज मेरी बाइक खराब हो गई, परसों मेरा ये खराब हो गया. That's true. कुछ प्रॉब्लम्स भी है ना. डोंट शेयर विद योर एम्प्लॉयर, डोंट शेयर विद योर क्लाइंट, डोंट टेल पीपल योर शॉर्ट कमिंग्स. ये आपके शॉर्ट कमिंग्स हैं, डोंट थिंक उनसे हमदर्दी मिलेगी. कामयाब लोग कभी भी हमेशा अपना एक परफेक्ट वाला चेहरा दिखाते हैं दुनिया को, इसीलिए हम समझते हैं बहुत कामयाब है, इन्होंने तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम्स देखे ही नहीं. दे हाइड देयर इश्यूज, दे ट्राई टू टैकल विद देयर प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स. द मोर यू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आप एक तो दूसरे की सिंपैथी नहीं लेंगे, वो आपको टर्न डाउन ही कर देगा कि यार मैं इसके साथ क्या काम करूं, उसके तो मसला ही नहीं खत्म होता है. दूसरा, आप खुद एक विक्टिम कार्ड हर जगह प्ले करने के आदी हो जाएंगे और इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ब्लेम योर लक कि मैं तो कुछ भी कर लूं मेरा काम नहीं बनता. अच्छा, देन आपके अंदर टीम वर्क, डोंट फील इनसिक्योर विद अदर पीपल, ट्राई टू वर्क इन टीम. लोगों को वो लोग पसंद होते हैं जो टीम वर्क करना जानते हैं. देन आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, और कॉम्पिटेंस कहाँ से आती है? हमारे अपने एक्सपीरियंस से, हमारी अपनी एजुकेशन से. तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मुख्तलिफ HR की लीडिंग कंपनीज के HR वालों से बात करनी कि ये चंद चीज़ें तो हर कैंडिडेट को, चाहे वो बिजनेस करना चाहता है, देखो बिजनेस में भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं. बिजनेस में भी हर क्लाइंट, जॉब में आपका एक बॉस होता है, बिजनेस में अगर आपके 25 क्लाइंट्स हैं तो 25 बॉसेस को आप डील कर रहे होते हैं और हर एक की एक्सपेक्टेशंस आसमान पे होती हैं आपसे. एंड इफ दे थिंक दैट दे हैव पेड यू 5,000 रुपीज यू, मतलब इसका जिस तरह हम कहते हैं ना यार सेठ की नौकरी करते हैं वो समझते हैं सेठ खुद कितना काम कर रहा है, यू हैव नो आइडिया, सेठ ने खुद कितनी मेहनत की है. सो
जल्दी से इसको रैप अप करेंगे कि एचआर वालों की तरफ मैंने क्या देखा, फिर मैं बात करूंगी कि हमें एज ए ह्यूमन अपने अंदर कौन सी चीजें डालनी चाहिए। एचआर वाले सबसे पहले आपका क्या देखते हैं? अपीयरेंस, द वे यू आर ड्रेस्ड अप, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, your education, your certifications, your skills, then how passionate you are for the job. Do you have any excess baggage attached, or you are an independent, flexible, reliable person? अब आ जाओ कि what are the factors जो contribute करते हैं किसी individual की success में। देखो मार्केटिंग की एक बड़ी ज़बरदस्त वो टर्म होती है कि यू फाइंड द गैप इन द मार्केट एंड फिल अप दैट गैप, अगर आपको सक्सेसफुल होना है प्रोडक्ट के लिए। Yes, that's true. हम कभी भी कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो बड़ा रटाया जाता है मार्केटिंग में, 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। Yes. Price, promotion, production. जिंदगी में हम प्रोडक्ट हैं, हम अपने आप को Yes. सेल कर रहे होते हैं 24/7, not only when we are working, in family also, when we are out for shopping, हम हर जगह अपने आप को एक certain तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम अपने ही एम्बेसडर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट हैं, तो हमें अपने ऊपर काम करना है ताकि हम सेलेबल हों। This sounds very weird, but we need to be a sellable item, कि लोग हमें खरीदें। हमें क्या खरीदें? हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी services। You need to be there. You need to be that approachable that when people look at you, they can actually see that, okay, fine, this person has this spark. I can actually work with this spark. Yes, I want to work with her, or I want to work with him. Be the kind of product. सबसे पहले उसका first step, जब सुबह सो के उठो तो सबसे पहले सोचो कि अगर मैंने sellable बनना है तो उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए why do I need to be sellable। पहले तो मुझे अपना why पता होना चाहिए कि क्यों मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले set your goal। एक ख्वाब देखने की आदत डालो, ख्वाब, ऐसा ख्वाब जो आपको कहीं लेके जाए। देखी जाएगी नहीं, देखी नहीं जाएगी, आपको नहीं पता कि देखते 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 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और टाइम आ जाएगा कि आप कहीं नौकरी अप्लाई करनी है। उस वक्त फैसला करने से बेहतर ये है कि आप शुरू में फाइंड योरसेल्फ, फाइंड व्हाट यू लाइक मोर। आप किस चीज़ के लिए कट आउट हैं। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अल्लाह ने आपको बनाया, आप एक इंट्रोवर्ट हैं और आपके अम्मा अब्बा ने आपको MBA मार्केटिंग में करवा रहे हैं, यू विल बी अ फेल्ड मार्केटियर या फेल्ड सेल्स पर्सन। हर किसी का अपना एक स्किल सेट होता है, कुछ चीज़ आपकी इनेट होती हैं, कुछ इनेट एबिलिटीज होती हैं। Find those abilities. talking about आपकी बात, अगर मैं, I'm sorry I'm cutting you out, but then again ये बात बहुत important है। Usually our parents are the people who are deciding our careers. That is something that is very common nowadays, and especially now people are changing too. Some people are actually changing this mindset as well. They don't actually burden their child on this, by why you or why this. My idea is self realization and self awareness, ke pata ho ke this is me, this is me as an individual, and this is how I want to work. How can a person who is just coming out of college or university know this? I want you to tell me that what is this thing that you wake up in yourself, because usually बच्चों को ये भी नहीं पता होगा मुझे करना क्या है, like मैं क्या करूं जिससे मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे आगे क्या, what should my goal be? देखो ये मेरे ज़माने के, तुम्हारे ज़माने के भी नहीं, और लॉट यंगर देन आई एम, ये मेरे ज़माने के बच्चों का तो कंसर्न या स्टूडेंट्स का तो कंसर्न हो सकता था। You will agree with me, students these days are more aware than we were back in the day. They इनके हाथ पे सारी दुनिया है, इनको मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया में कहाँ क्या, कितनी तब्दीली आ रही है, कितनी तरक्की हो रही है, एंड दे नो देमसेल्व्स आल्सो। इसमें बहुत ज़्यादा रोल हमारे स्कूल्स ने भी प्ले करना शुरू किया है। आपको अगर अपने आप को पहचानना है ना, तो अब वही मैं बात कर रही हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ऑफ योर इंटरेस्ट, या अपने आप को थोड़ा सा जानो कि मुझे क्या काम करने में मज़ा आता है, मैं किस किस्म का इंसान हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ा, अगर जिन फैमिलीज़ में आज भी पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं कि उनको क्या डिसिप्लिन लेना है या उन्हें आगे क्या बनना है, तो फिर उनको कन्विंस करना, पेरेंट्स को बताना कि डैड आई एम नॉट मेड फॉर दिस, या आई लाइक फोटोग्राफी मोर, आई एम मोर आर्टिस्टिक। ये पेरेंट्स का भी काम है कि फाइंड आउट योर चिल्ड्रंस एबिलिटी। जैसे मुझे एग्जैक्टली पता है, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे पता है कि मेरा कौन सा बच्चा आर्टिस्टिक है, कौन सा बच्चा एनालिटिकली बेहतर है, और मतलब कौन सा बच्चा क्या करेगा मुझे अभी से मालूम है। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं उन्हीं चीज़ों में वो लोग एक्सेल करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सकें आगे लाइफ में। आपको इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीबडी, जब तक आप हाई स्कूल में आते हैं, स्पेशली द किड्स दीज डेज, उनको काफ़ी अंदाज़ा होता है अपने पोटेंशियल का। अगर उन्होंने A levels किया होता है तो द काइंड ऑफ स्कूल्स दे आर फ्रॉम, और कुछ नहीं यार, तो यूट्यूब पे देयर आर सो मेनी टॉक्स। मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ कि व्हाई डोंट यू लिसन टू टेड टॉक्स, वो तुम्हारे दिमाग को खोलेंगे और तुम्हें अपने आप को पहचानने में बहुत हेल्प करेंगी।
माँ बाप को ब्लेम करना छोड़ दो, वो हम थे जो करते थे कि यार अब्बू ने यहाँ एडमिशन लेने नहीं दिया, या अम्मा ने ये मना कर दिया, या मामू आके कह रहे थे कि नहीं लड़की लड़कों के साथ नहीं पढ़ेगी, हमारे यहाँ के मसाइल थे, अब नहीं है। Yes. तो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फाइंड योर पैशन। आप अपना एक गोल सेट करें, जिसको बिजनेस में जाना है वो भी कहीं ना कहीं लग के काम करे ताकि कुछ सीख ले, जरूर बिजनेस करें, मगर आप प्लीज सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ। आप कहीं अपना मतलब एक चॉक आउट करें कि मुझे यहाँ पहुंचना है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाना है, मुझे क्या करना है। ये गोल नहीं होता पैसा कमाना है, पैसा कमाना इज द बाय प्रोडक्ट। जो कोई काम करोगे पैसा तो आएगा। बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ व्हाट्स योर गोल, तो कहते हैं पैसा बहुत सारा। ओके फाइन, मेरा तो जैसे था ही नहीं। इट्स एवरीवन्स गोल के पैसा कमाना है, मगर जो भी काम करोगे पैसा इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस काम, पैसा इज द रिजल्ट, पैसा इज नॉट द गोल, पैसा रिजल्ट होता है। तो पहले आप फाइंड करें कि आपका पैशन क्या है और क्या चीज में आप नेचुरली अच्छे हैं। दूसरी चीज ये, पूरा फोकस करो टू गेट अ गुड डिग्री। एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ज़िंदगी में, बेहतर नौकरियों में, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ में। एक एजुकेटेड माइंड, ज़रूरी नहीं कि आप कहीं नौकरी करें, अगर आप कहीं बिजनेस भी करते हैं तो एक एजुकेटेड इंसान बेहतर डिसीजन लेता है। चलो आप कुछ भी नहीं कर रहे, अभी आप नौकरी भी नहीं कर रहे, बिजनेस भी कर रहे हैं, आप इन जनरल लाइफ में बेहतर डिसीजन मेकर होते हैं अपने लिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। तो डू नॉट एवर गिव अप ऑन योर एजुकेशन। आप अपने तालीम पे पूरी तवज्जो दीजिए, बेहतर अपना वो डेवलप करें अपना। अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन नहीं है तो आप सर्टिफिकेट्स हासिल करें, लर्न न्यू स्किल्स। आप अपनी ज़िंदगी देखो, जितना ज़्यादा अपने आप को इनरिच करोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे ना, उतना ही लोगों के लिए वर्दी आप साबित होंगे। लोगों को आपसे ज़्यादा आपके काम में इंटरेस्ट होता है कि ये बंदा मेरे कहाँ कहाँ काम आ सकता है। हम ऐसा एक दूसरे से कामों की वजह से ही जुड़े हैं। हम एक दूसरे से पूछते हैं कि यार इस काम के लिए बंदा बता दो। तो बी सो गुड एट योर फील्ड और बी सो गुड एट वन थिंग और टू थिंग कि लोगों के दिमाग में आए कि जैसे हम नहीं होते, हमें कारपेंटर चाहिए होता, तुम एक बंदा हमारे जहन में होता, उसको फोन करना है। हम कभी ये नहीं कहते कि यार ये बंदा एसी ठीक तो करना नहीं जानता, चलो बुला लेते हैं। वी नेवर डू दैट। हम माली भी बड़ा छान पटक के रखते हैं, हम उस मासी को रखते हैं घर में जो काम बेहतर करती है। तो काम, यू हैव टू बी सो गुड, यू आर नॉट द ओनली पर्सन विद दैट डिग्री। उस एक डिग्री के भी, एक MBA को ही लेके तुम देख लो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कितने सारे हैं, उनमें से तरक्की वो करेगा जो बहुत अच्छा होगा अपने काम में। तो बी गुड एट व्हाट यू डू। आफ्टर एजुकेशन आपने करनी है स्किल डेवलपमेंट। इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अपने दिमाग को बड़ा कीजिए, सीखने वाले बने। देन द काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव, दे डिटर्मिन योर सक्सेस। नो मैटर हाउ गुड यू आर, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपको लगता है आपको कोई बेहतर पोजीशंस के लिए सोचेगा या कंसिडर भी करेगा? कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आप, इफ यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट, प्लीज वो वाले स्किल सेट्स डेवलप करो जिसमें बात ना किए बगैर भी पैसा कमाया जा सकता है। कौन सी फील्ड है वो? एक फाइनेंस, दूसरा आईटी की तरफ चले जाओ। अगर इंट्रोवर्ट हो, बात नहीं की जाती, लोगों का, इंसानों का ज्यादा पसंद नहीं है मुदाखलत अपनी जिंदगी में, तो गो फॉर दोज थिंग्स जो जिनमें ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो। इफ यू लाइक टू कम्युनिकेट, एक्सट्रोवर्ट हो, लोगों से एनर्जी मिलती है, आराम से लोगों से बात कर लेते हो, तो देयर अदर फील्ड्स फॉर यू। मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, क्लाइंट सर्विसेज है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, जहां भी लोगों से आपका है। तो मैं जो कह रही हूँ ना, द फर्स्ट थिंग इज फाइंड द व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे क्या मजा आता है। अच्छा जी, अब हो गया आपकी कम्युनिकेशन हो गई, एजुकेशन अपने अंदर आपने डेवलप कर ली, स्किल्स हो गए। देन कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीजें जिंदगी में मुझे नेटवर्किंग से मिली हैं। The kind of people I have in my friends list, the kind of people I hang out with, they have contributed a lot in my current success. I won't say the earlier success, that was all drill and बहुत ही roasting और grilling था। आज जो मैं हूँ या मुझे जो रोजाना एक नई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आती है, इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ नेटवर्क आई हैव। एक बहुत मशहूर सेइंग है, एंड आई ऑलवेज कोट, network is your net worth. The kind of people you're hanging out with, they help you in showing you the doors, the opportunities. अपने ऊपर नजर डालो, किस किस्म के लोगों में उठना बैठना है। क्या वो लोग हैं जो वो खुद भी अपनी जिंदगी से तंग और परेशान है और वाइनिंग कर रहे हैं, कंप्लेनिंग कर रहे हैं और परेशान है, या वो लोग हैं जो
ड्रीमर्स हैं, जो निकल के कुछ करना चाह रहे हैं या जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाह रहे हैं, देखो बड़ी एनर्जी मिलती है अगर आप सही लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे ना। अगर आप कितने भी डाउन होंगे और आप एक सक्सेसफुल इंसान से बात करेंगे तो आपको वो एनर्जी, और एनर्जी बड़ी कंटेजियस होती है। यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग ग्रेट इन मार्केट। फिर That's so true. If I take your point forward, Mavish, you talk about energy and you talk about the environment or the people you surround yourself with. I was talking once to Umar about it, and Umar is one of the teachers that I have in Greenwich University. He's been my mentor. So he told me, Sundis, if a certain person is affecting you and the certain person is actually affecting your growth, and you feel like कि नहीं मुझे इनसे बात करके थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, so you stop talking about it, like stop talking to them. So Mavish, I agree to your point that you need to understand your whole criteria, the people around you, the people that you want to hang out with, and your friends matter a lot. Your friends are the family you choose. So this is exactly. something अब very देखो important. exactly, आपके फ्रेंड्स आपका माइंडसेट बनाते हैं। एक बड़ा मज़ेदार उमैर जाले वाला की मैंने टॉक सुनी थी, उसमें था कि हम 4 अपने जैसे दोस्त बना लेते हैं, उसमें से एक कहता है यार मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बाकी कहते हैं यार, और हम मशवरा किससे देते हैं? उन 4 दोस्तों से जो बिल्कुल वेले फारिग होते हैं। हमें मशवरा लेने के लिए भी, अच्छा मशवरा देने के लिए भी कोई काबिल बंदा चाहिए ना। वो काबिल बंदा कहाँ से लाएंगे? अच्छा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हम खुद गंवाते हैं। अगर कोई हमें कोई अच्छी जगह इनवाइट करता है तो हम नहीं जाते, यार बोर होऊंगा मैं। I'm talking about youngsters. I'm not talking about the old people like me. Youngsters usually like to hang out with the people जो बिल्कुल पढ़ाई के बारे में ना पूछें, जो बिल्कुल ही ना पूछेंगे करियर में आगे क्या करना है, बिल्कुल चिल उनको चाहिए जिंदगी, और उसके बाद फिर रोना है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। Anyway, so the kind of network and contacts you have, then उसके बाद आता है आपका अपना पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। 2 तरह के लोग होते हैं सेम सिचुएशन में। एक आदमी होता है, अगर फॉर इंस्टेंस यू आर स्टक किसी भी सिचुएशन में, एक आदमी होता है वो सिर्फ कंप्लेन कर रहा होता है, रो रहा होता है और अपने नसीबों को कोस रहा होता है। दूसरा बंदा होता है वो मुस्तकिल ही इज सर्चिंग फॉर द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और उसको वो लाइट जरूर मिलती है, और दूसरा उस डीप गहराई में अंधेरे में रह जाता है। So your positive mental attitude is critical for your own success. हर सिचुएशन में से कोई अल्लाह की मसलहत ढूंढ लेना और उसमें से उस मसलहत को बस पकड़ के उसके ऊपर से क्लाइम करके निकल जाना, that helps you in surviving also and becoming successful later. Then comes embrace your failures. मैंने जो बात की कि मैंने कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के फेल प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और अभी भी होता है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हूँ कभी कोई आइडिया लेके और वो बाद में काम नहीं कर पाता। That's so true. Don't disown your mistakes. Don't disown कि मैंने नहीं किया या मुझे। देखो एक बात तो सबसे पहले, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी and he was saying कि I don't deserve, मतलब कुछ भी। मैंने कहा देखो don't talk about I don't deserve this or you're not special. हम अपने आप को समझते हैं कि हम अपनी कहानी के हीरो हैं तो शायद पूरी दुनिया के हीरो हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो भी डिजर्व करते हैं ना सुंदस, हमें वही मिलता है। आई डिड नॉट, मैं क्यों आज प्रिंसेस ऑफ वेल्स नहीं हूँ? क्योंकि मैं शायद वो डिजर्व नहीं करती थी। मैं आज जो भी हूँ, मैंने जितनी मेहनत की या जो मेरा कैपेसिटी थी या जो मेरी अल्लाह ने जो मुझे समझा, तो अल्लाह की सबसे पहले तो जो तकसीम है ना, उससे इख्तलाफ ना करें। डोंट से आई डोंट डिजर्व दिस। आप में ज़्यादा पोटेंशियल होगा, अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा, लोग आपको और जॉब्स देंगे, अगर आपको और तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, तो भाई पोटेंशियल है, जितना है हम उतना ही, मतलब उतना ही हमें मिलेगा। सो डोंट थिंक आई डोंट डिजर्व दिस। तो जब भी जिंदगी में आप फेल हो, स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल। डोंट से कि उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। हमेशा एम्ब्रेस करें, उसमें से कुछ सीखें और मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। उस फेलियर को तमगा बना के सजाने के बजाय उसको एक एक्सपीरियंस बना के कहीं पीछे रख दे फॉर द रेफरेंस चेक। बैग होता है ना पीछे से, कभी आपको ज्यादा कोई होता है कि नहीं यार इतनी गंदी गंदी मेरी नाकामियां भी रह चुकी हैं, तो ये तो कुछ नहीं है। सो जस्ट लर्न फ्रॉम देम। देन द लास्ट थिंग इज, if you are unable to find a good job for yourself, create your own opportunity. Find the gap in the market. अपने दिमाग के जो सेल्स हैं उनको इस्तेमाल करें। वो सारा दिमाग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ढूंढने के लिए नहीं है, सीरीज के कौन सी देखनी है मैंने नेक्स्ट, वो इसलिए है कि along with seeing those Netflix और प्राइम की सीरीज देखने के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जब आप उस मार्केट में नीड को फाइंड करेंगे और आप अपनी सारी नॉलेज लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर आप वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर लेंगे तो 1,
एक तो आप वो जो एक बहुत लंबा गैप आता है और एम्प्लॉयर पूछता है कि इतने साल आप क्या कर रहे थे, तो यू विल हैव द आंसर फॉर इट कि आई वाज द CEO ऑफ दिस कंपनी विच डिडंट वर्क और विच वर्क। तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो वो तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी या बहुत मशहूर यूनिवर्सिटियों के बच्चे जिन्हों आपकी नौकरी बकौल आपके छीन के ले गए, आप उनको नौकरी पे रख सकते हैं। तो just believe in yourself, this is the most important thing, and do not complain कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया तो बहुत मुश्किल हो गई। मैं बाहर रही हूँ पूरी जिंदगी, बाहर कमाना पैसा इतना मुश्किल है। पाकिस्तान इज द कंट्री जहाँ पे पैसा कमाना सबसे आसान है। आप कोई भी काम कर लें, फेसबुक पे लोगो बना के पेज स्टार्ट करें एंड स्टार्ट सेलिंग, कोई आपसे नहीं पूछेगा, ना पैसे देने वाला आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है, ना आपको कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आके परेशान करेगा, टैक्स वालों को पता ही नहीं चलेगा, सारा काम कैश पे करो और पैसा कमाओ। There's so many ways to earn money here in Pakistan, plus so many, still we have a lot of gaps. हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अभी देखो ये जो बारिशें हुई, अगर कोई अच्छी इफेक्टिव प्राइवेट कंपनी होती जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करती, इस वक्त उनकी चांदी हुई होती, जिस तरह ज़ूम वालों की चांदी हो गई आफ्टर लॉकडाउन, इतनी अमीर कंपनी हो गई। इसके अलावा जस्ट लुक अराउंड, इतना पोटेंशियल है इस मुल्क में। और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, 22 करोड़ अवाम। अगर आप कोई सस्ती सी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको 2-4 लाख लोग ही अगर आपकी प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आप यू आर गुड टू गो, आप अच्छे खासे अमीर हो सकते हैं। तो थैंक गॉड वी आर बोर्न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कहने में बहुत फजूल सी बात लगती है, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ऑन द बेस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। आई नो लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो कि बाहर रहते हैं और वो बेचारे कोई बिजनेस आसानी से नहीं शुरू कर सकते। इट्स टू टफ फॉर देम, इतने टैक्सेस हैं, पर तो इतने टैक्स भी नहीं है। तो कहना ये कि भाई मेरे साथ बुरा हो रहा है, उसमें से आप निकल आए, नो मैटर व्हाट यूनिवर्सिटी। यस, डोंट ब्लेम एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर यू एंड टेक एवरीथिंग एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, अगर कोई एक इंसान भी मिला है ना, इवन इफ यू मीट मी, राइट, सो व्हेन आई सी समवन एंड व्हेन आई मीट समबडी, I take that incidents or I take that event as an opportunity for me to either learn from that person कि वो मुझे कुछ सिखा के उठेगा, या मुझे किसी नॉलेज के हवाले से कोई मुझे नफा पहुंचा देगा, या कुछ नहीं तो एक अच्छा कॉन्टैक्ट बन जाएगा, या वो मुझे कुछ सबक दे के हट जाएगा। अगर वो बंदा अच्छा नहीं होगा तो मैं कोई लेसन लर्न कर लूंगी, अच्छा बंदा होगा तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, या वो मुझे कुछ अच्छी बात ही सिखा देगा। तो प्लीज, इंस्टेड ऑफ फीलिंग इनसिक्योर दूसरों से, या अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट इंसान को देख के थोड़ा सा जेलस हो जाना, इनसिक्योर हो जाना, या ये सोचना कि क्योंकि वो लोग मेमन है तो वो है ही अमीर, क्योंकि वो चिनियोटी है तो है अमीर। I am a successful businesswoman. I'm neither a Maiman nor a Chinyoटी, and I don't have na Punjabi Saudaгаran. I do not have any business background. My father was a regular person who worked all his life outside Pakistan. एंड हमारी फैमिली में तो एक आम ख्याल है कि बिजनेस ना करो, बस अच्छा सा पढ़ के कोई बड़ी सी कंपनी की नौकरी पकड़ लो। सो if I can do it, that's the preconceived notion of any household. I would say majority of households actually have this preconceived notion that you take a good degree, you get into a good firm, you get a 9 to 5 salary job that is amazing, a 6 to 7 figure job, you're good to go, you know, everybody's happy with you. So Mavish, the topic is vast. The topic is like, you know, if I talk about this whole idea of how you set up your goals, what are the tips and what are the, you know, factors that make you stand up in an interview or stand out in an interview. So thank you so much for your time, Avish. The time went by, I didn't even get to get all the contents together. And I do believe that this session is something that can be prolonged, and we will have another session like this in which you will talk about how the leaders of today, especially the people who are having different people around them, because मैंने अभी comment देखा था, उसमें था that, you know, I don't get that satisfaction from my leader. They tell me that if I don't get it from them, or if they don't give me those good words, you know, you did well, or that reinforcement that you should require from them, it affects them. It you know, builds a wrong situation. That Sarwat Osama said that people do not praise sometimes your efforts. Sometimes you need moral support a lot. So you know, मैंने भी क्या कहा, network, the kind of people you surround yourself with. और सुंदर, तुम agree करोगी, आपके अपने हाथ में है कि आपने किस किस्म के लोगों को अपने जिंदगी में शामिल किया हुआ है। मैंने एक लेसन किसी से बहुत अच्छा सीखा था। I was
whining about somebody in my life कि यार ये कभी खुशी नहीं होती या कुछ भी जिस तरह, तो she said कि Mavish, there is one person who is not happy with you and there are thousands who like you, who admire you, who are always there for you and they love you. तुम्हारा focus गलत है. It's you who is wrong. It's not her or anybody. And if somebody doesn't like you, not everybody likes the chocolate flavor ice cream. बहुत से लोगों को आम पसंद नहीं है, कुछ ऐसे भी महान हस्ती हैं जिनको आम पसंद नहीं है. तो you're not that likable person कि हर कोई आपको moral support करेगा. आपने एक तो देखो, मैं strength तो खुद ही find करनी है. Find your strength and then find the right people जिनके साथ आप अपना ज़्यादा time बिताएं. Don't waste yourself with toxic people. Anyway, thank you so much, Sundar, for inviting me. And no, actually, I would say, nahi, you would go on, and I would love you to go on because you speak so well. Mashallah, you're an amazing. Yes, well, you're such a great public speaker. We would love to have you, on Greenwich University as well. You talk to our business school students as well. You tell them, not even business school, just, any student who are, looking for their jobs and everything. Talking about, Abhi Sarab Nawaz ka message aaya and he, commented that good job, Mavish and Sundar. I would take this opportunity and, I would thank all the teachers in Greenwich University that they have been such a huge support to students like us, because we actually don't get all the opportunities available. For the teachers opening opportunities for us, because it was Umar, it was Sarab Nawaz, Nishazia, all these people who helped me out. I always thank them because, I believe कि अगर आप उन opportunities को, उन mentors को thank you ना करो, जो आपके लिए opportunities खोलते हैं, और फिर आप एक ऐसे mentor बनते हो जो आप किसी के लिए opportunities खोलो. So, this is like a cycle. That once you do good, the good goes on and on and on. Mavish, thank you so much for your time. This was amazing. I had so much fun with you. You're always such a great delight to talk to, and you're an excellent trainer. Definitely your experience speaks when you are talking. Thank you so much for your time. And how was your whole experience at Greenwich University's live session? It went great. I enjoyed talking to you yesterday also on the phone, and I really had fun at this session. I don't feel like as if कि मेरी recently आपसे मुलाकात हुई, और मुलाकात तो भी हुई नहीं, आज मुलाकात हो रही first time. I loved it, and अल्लाह ताला Greenwich University को बहुत तरक्की दे और इसके students जो हैं वो जो Greenwich का goal है उसके साथ align हो, because students are our representatives. तो मैं एक चीज़ मैं अगर students से कहूँगी, मैं अक्सर देखो, what makes IBA the IBA? Their alumni, their students. हमारे यहाँ problem है, students they don't take pride in their universities, in their institutions. आप अपनी institution की बुराइयाँ बाहर जाके ना किया करें. मैंने अभी कहा ना कि घर में जितने मसाइल होते हैं बाहर नहीं कहते. Similarly, university के कोई भी shortcomings हैं, there is always a way. जब आपके अच्छे teachers हों, जब आपके अच्छे directors हों, put forward your suggestions instead of fibbing about it. तो प्लीज ओन करो अपने इंस्टीट्यूशन को, जैसा है, बड़ा है, छोटा है, लम्स नहीं है. लम्स और आईबीए के बच्चे बोलते हैं. अब निक्सर, माय डॉटर गोज टू निक्सर. निक्सर के बच्चे दे फील प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम निक्सर. ग्रामर के बच्चे दे प्राउड. उनके क्या प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? So please, that's so true. I would definitely say to you that, Mavish, taking your point forward, thank you so much for your time, and I totally agree with your idea as well, that you need to own the people and you need to own the organization you work with. You need to own the system that you are working with. Until you don't realize that you are you are the person who's going to shape it, you will not change it. You cannot change it. So thank you so much, Mavish. Excellent ideas and great tips, for the students as well. I would definitely call you back, and we will have another session regarding leaders and how they, have their impact in this society and what they can change and what is the major core missing, or that cortex that's missing in the leaders. That's why people are so scared about jobs these days. So thank you. I really appreciate it. This was Mavish Sayyed. She is the CEO and co-founder of the Page Emerge. She is working in the Chamber of Commerce as well. She has a lot to say because she went there in the practical field and she practiced it. She practiced it herself and then she took out the ventures forward. हमेशा यही बात दिमाग में रखनी चाहिए that failures are going to come. It's a part of life. That's how we all grow and that's how we all achieve certain things in life. You need to understand what are the major things important for you and what is your goal.
you need to have that goal. My today's session was all about finding your own self and finding the individual in you that is going to go forward and going to be a better Pakistani and going to help our country, Pakistan, as well. So thank you so much for your time, everyone. I really appreciate it. If you have any queries, any feedback, please let me know. The email, the number, the registration e-website is going, is moving over here. You can easily contact us. We are having our bachelor's, master's, postgraduate, all programs available. So please let me know. Thank you so much for your time. Have a great day. Pakistan Zindabad.